सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तुसी सुन रहे हो जी तुहाडा अपना रेडियो स्टेशन 1674 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਸੋਢੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਔਨ ਏਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਲਿਸਨਰਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰवीण कुमार जी एक बार फिर से आपका स्वागत है जी रेडियो हाँ जी में। थैंक यू गुरजोत जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को जी। प्रवीण जी, वैसे मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इंश्योरेंस जी है नहीं, तो इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, या मैं जे अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜੋ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, तो तुसी किस तरह डिफाइन कर सकते हो कि इंश्योरेंस की है, व्हाट इज इंश्योरेंस सर, आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? सर जी, अगर इंश्योरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इंश्योरेंस मीन्स ट्रांसफ़र योर रिस्क। मीन्स आप अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। जैसे अगर आप कार का इंश्योरेंस करते हैं तो दैट मीन्स आपने कार की जो आपकी वैल्यू है उसको, रिस्क को आपने कंपनी को दे दिया जी। अगर आपकी कार को कुछ भी होता है तो कंपनी विल पे दैट अमाउंट फॉर यू जी जी। तो सेम टाइप सर इंश्योरेंस, सभी इंश्योरेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस इज ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू समवन एल्स जी जी जी। तो और हम अभी तक जिस तरह सुनते आए हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, सभी की जो आपने अभी भी बताया कि सभी की जो ओपिनियन है जी जी, वो यही है कि लाइफ इंश्योरेंस से बचो जी जी। लेकिन जी, वो इंडिया में है सर जी। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जी जी, डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जी, सब कुछ चेंज है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस थोड़ी डिफरेंट है जी। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ ਹਨਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। गुरजोत जी देखिए, अगर इंश्योरेंस को फाइनेंस की लैंग्वेज में आप डिफाइन करें तो इंश्योरेंस दो तरह का होता जी। है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। जी। एक मरीन इंश्योरेंस भी होता है, बट जी। उसको वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, हम दो ही पे फोकस करेंगे। जी जी। तो जनरल इंश्योरेंस में आपकी सारी जितनी चीज़ें हैं जो जिनमें लाइफ नहीं है जी, वो जी। चीज़ें आगे, जैसे आप ये सिंपल समझने के लिए है। जी जी। जिस प्रोडक्ट में लाइफ नहीं है वो जनरल इंश्योरेंस है, क्या बात है। जो प्रोडक्ट में जो इसमें लाइफ है जी। वो लाइफ इंश्योरेंस है। मतलब अगर मैं ये कहूँ, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਾਕਬੈਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 044 717 1674 044 71 71 674, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਕੋਡ 03 ਪਲੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 93560344 93560 344। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 0280725166 02 80 72 51 66। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਐਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਸ ਉਹ LIC ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ HDFC ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सेम है जी, सब कुछ सेम है। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स आपको एक लमसम बेनिफिट मिलता है जी, अगर आप आउट ऑफ पिक्चर हैं, इफ़ यू डाई प्रीमेच्योरली जी, और बाय एनी मीन, तो आपको एक लमसम बेनिफिट दिया जाता है आपके बेनिफिशरी को, आपके बेनिफिशरीज जी, तो जिससे कि आपकी जो फैमिली है आपके पीछे वो सफ़र नहीं करती, उनका लाइफस्टाइल मेंटेन रहता है, आपके डेब्ट्स उनको आपकी लायबिलिटी नहीं उठानी पड़ती जी। तो वो बेनिफिट्स के टर्म्स में सेम है जी, बट इम्पोर्टेंस के थोड़ी सी डिफरेंट है जी। जी, इंडिया में और यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, काफ़ी डिफरेंसेस हैं जी। और अकेला लाइफ इंश्योरेंस नहीं कह सकते हम, लाइफ के साथ साथ इसमें लाइफ से जुड़े हुए कई इंश्योरेंसेस हैं जी। जी, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रॉमा इंश्योरेंस है जी, जिसको क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है जी, और इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है जी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है जी, एक्सीडेंटल कवर, बिजनेस एक्सपेंस इंश्योरेंस कवर, की मैन इंश्योरेंस। तो ये काफ़ी इनकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, ये सारे लाइफ से रिलेटेड है। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट है कि वाई वी नीड इट? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, हम एक इंसान है, वो छोटा होता है, उसके पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं जी, उसको एजुकेट करते हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करता है जी, एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाता है जी, अपनी ताकि सेहत बनी रहे, स्टडी अच्छी करता है ताकि जिंदगी में कुछ बने जी। इतनी कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद एक ऐसा तैयार होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार होता है जी, मैं इंसान को प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मतलब जी जी जी, तो वो ऐसा प्रोडक्ट तैयार होता है कि वो कुछ भी कर सकता है फिर जी जी। सपोज जैसे हम बच्चे होते हैं, हमने अपना घर बना लिया जी, हमने गाड़ी ले ली जी, हमने और बड़ी गाड़ी ले ली जी, हमने जेवर खरीद लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो हम सारी चीजें जोड़ लेते हैं। एक इंसान इन सबको इकट्ठा करके कर लेता है जी, और फिर वो सोचता है इनको सिक्योर कैसे करूं ताकि ये बनी रहे जी। उसने घर लिया तो घर का इंश्योरेंस ले लेता है ताकि मेरा घर अगर टूट जाता है तो दूसरा घर के लिए मैं बन सकता है जी। गाड़ी लेता है, गाड़ी का इंश्योरेंस ले लेता है ताकि अगर गाड़ी उसकी डैमेज हो गई या उसकी वजह से कोई और गाड़ी डैमेज हो गई तो वो उसको कवर कर सकता है, वो उसको जी। इवन मोबाइल फोन भी अगर वो लेते हैं तो मोबाइल को भी इंश्योर कर लेते हैं जी जी। बिल्कुल वो तो सबसे पहले करते हैं, हाँ सबसे पहले करते हैं। वो गाड़ी हो ना हो मोबाइल इंश्योर जरूर होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस की बात है, आप अपनी एसेट्स को जो आपने बनाई है जी, उनको आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि मुझे ये इसका इंश्योरेंस ले लूं कहीं ये जी डैमेज ना हो जाए जी। तो इन जब एसेट्स को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इन एसेट्स को खड़ा किसने किया, क्या बात, इन एसेट्स को हमने खड़ा किया, क्या बात। तो हम अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम इस आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं, हम नहीं है जी जी। गाड़ी आप दूसरी भी ले सकते हैं, गाड़ी अगर आप एक डैमेज होगी आप दूसरी खड़ी कर सकते हैं, किसी खड़ी कर सकते हैं, घर दूसरा बना सकते हैं, मोबाइल और ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। तो लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है गुलशन जी जी जी। तो इसलिए मैं ये सबको ये मेरा पहला वही होता है कि सबसे यही, अगर कोई पूछता है मुझे व्हाई आई नीड इंश्योरेंस जी जी, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि बिकॉज यू नीड इट, बिकॉज यू नीड इट। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਸ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰਸ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, मैं कुछ प्रवीण जी को पूछना चाहूंगा। हाँ जी सर। जी जी प्रवीण जी, जैसे मैं अभी यहाँ पे अपना घर नहीं लिया और मेरा जो मैं सोच रहा था कि मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, अभी तक मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं सारा एक ही पैकेज ले लूं। अभी मैं 1-2 महीने में घर ले लूंगा, घर देखा हुआ है, सिर्फ सेटलमेंट बाकी है। हाँ जी जी। ये सारा पैकेज एक ही जगह हो सकता है? जैसे मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ, गाड़ी, हाउस सब एक ही जगह पे हो जाए। देखिए सर, इसके जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, जनरल और लाइफ। तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। जनरल, इसके दोनों ही प्रोफेशनल अलग अलग हैं,
जनरल के प्रोफेशनल्स अलग हैं और लाइफ के प्रोफेशनल्स अलग हैं। आप पैकेज ले सकते हैं एक ही प्रोवाइडर से। आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करेंगे अपने होम लोन के रिगार्डिंग या उसके रिगार्डिंग, आप इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आपको डिफरेंटली लेना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप हाउस कंटेंट्स, कार, ये सभी एक कंपनी से कर सकते हैं और लाइफ एक दूसरी कंपनी से, या फिर सिमिलर कंपनी से बट प्रोफेशनल डिफरेंट होंगे जो आपको प्रॉपर एडवाइस जो देंगे। सो इट मीन्स जो मैं सोच रहा था वो गलत है कि मैं एक ही बार सारा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसलिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया। आई नो कि इंश्योरेंस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, लेकिन जो मैं सोच रहा था वो गलत है कि ये दो डिफरेंट पाथ हैं, दोनों डिफरेंट पाथ पे हमें डिफरेंटली चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसमें आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप हाउस इंश्योरेंस या ले रहे हैं, कार इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें आप क्विक हो सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके 10 मिनट में फॉर्म फिल करके और स्ट्रेट वे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ले सकते हैं। बट जब आप बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी प्रोफेशनल से मिलें। आप बैंक में जाएं या फिर इंश्योरेंस कंपनी को डील करें, बट किसी इंश्योरेंस प्रोफेशनल से मिलें जो आपको पूरा एक्सक्लूजन्स इंक्लूजन्स आपको गाइड कर सके, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस इफ़ यू टॉक अबाउट अ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सिंपल इंश्योरेंस नहीं है इंडिया की तरह, जैसे आपने ले लिया लाइफ। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अभी शो में डिस्कस करेंगे, आप सुनते रहिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा लाइफ के लिए आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और अच्छे से सोच समझ के लें। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। जी जी हाँ। और मेरा एक और सवाल था कि जैसे चलो ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि ये दोनों अलग अलग पाथ हाँ है, जी। और मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट थिंग और इट्स अ सेम थिंग? ये भी डिफरेंट थिंग है राहुल जी। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मेडिकेयर है सिटीजन्स के लिए, परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए, और जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनको अपना परचेज करना पड़ता है कवर। तो वो जो मेडिकल कवर है, वो हेल्थ कवर, वो आपको मेडिकल कॉस्ट कवर करता है आपकी। वो आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं करता वो। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ के जो डिफरेंट पार्ट्स जो भी बताए हमने, ट्रॉमा, इनकम प्रोटेक्शन, ये इन द इवेंट ऑफ एनी क्लेम के इवेंट पे, मान लिया जस्ट सपोज आप सिक हैं, इंजर्ड हैं, तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको मेडिकल कॉस्ट तो कवर कर देगा जी, बट आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलेगी अगर आपका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, सपोज 100-2 साल। तो इट मींस आई वाज टोटली रॉन्ग कि जैसे मैं स्मॉल बिजनेस रन कर रहा हूँ तो हाँ मैं जी। सोच रहा था घर लेके सारा कुछ एक में कर लूंगा, वो नहीं है। हर चीज की अलग अलग इंश्योरेंस है और उसकी अलग अलग प्योरिटीज है। जी बिल्कुल। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਹੈਲਥ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ? जी बिल्कुल। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ। जी बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस और उसके डिफरेंट पार्ट्स, ट्रॉमा, आपका इनकम प्रोटेक्शन, जो जी। अगर हम लाइफ की बात कर रहे हैं राहुल जी, तो दैट मीन्स हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, नॉट ओनली लाइफ। जी ठीक है। और इसमें जैसे अभी जो अभी बात चल रही है, इसमें मेरे दिमाग में अभी बात आई कि जैसे मेलबर्न में तो ब्रोकन कम होती हैं, मतलब कि चोरी वगैरह कम होती है, यहाँ पे पर्थ में बहुत होती है। तो इट मीन्स अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपने वर्क फोन को
अलग से इंश्योरेंस नहीं ली, मैंने हाउस इंश्योरेंस ली हुई है, और वो कोई घर में ब्रेकिंग करके मेरा फोन चुरा के ले जाता है, हाँ जी। तो वो कवर होता है हाउस इंश्योरेंस में कि नहीं? वो डिस्प्यूट में होता है? नहीं, वो कंटेंट्स इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको। जो हाउस इंश्योरेंस आपके हाउस को डैमेज को कवर कर सकता है, और जो आपके अंदर के कंटेंट्स हैं उसके लिए कंटेंट इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको। जी। तो आप तो मेरे को डरा रहे कि अभी इन सबकी इंश्योरेंस करवाऊंगा तो 500 से $1000 पर मंथ तो इंश्योरेंस का जाएगा। जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक बिलों की कंट्री है। यहाँ पे जब आप जैसे सेटल होते जाते हैं, आपकी एक ऐसी लाइबिलिटी सेट हो जाती है कि आप उस कमाते हो और उस सर्कल में ही रहते ਹੋ, आप ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਆਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सोडी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, आपसे बात करके बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे को। थैंक यू राहुल क्योंकि जी। अभी मैं और बात करना चाहता था, लेकिन 5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं किसी के साथ ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ मिलने के लिए किसी को। जी जी तो रियली थैंक यू वेरी मच। एंड सोडी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी है? हाँ जी है। जैसे अगर आपने अभी इस बारे में अगर जी, आप जी, चाहते हैं जी। कि आपको टैक्स पर्पज से आप पूछ रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप टैक्स बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ नहीं, ਜੀ, या- ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ना इंडिया च जिਵੇਂ अपनी पॉलिसीज मिलदियां सीगियां, वो जो maturity के बाद होती है। मैच्योरिटी के बाद और आपको हाँ जी। उसके आके नहीं सानू कह ਜਾਂਦੇ हाँ ਹੁੰਦੇ जी, ਸੀਗੇ हाँ जी, हाँ जी। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाँ 25 जी, ਸਾਲ हाँ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਮਿਲੂਗਾ। हाँ ਉਹ जी, 25 ਸਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। हाँ जी, हाँ ਉਹ जी। ਮਤਲਬ बिल्कुल बिल्कुल। ਨਹੀਂ आप ਤੁਹਾਡੀ सही ਤਾਂ investment। ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ हाँ ਰਿਸਕ जी, ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ ਹਾਂਜੀ जी, ਮਾਰਕੀਟ हाँ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। हाँ जी योगेश जी, ਉਹ अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਸਵਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। जी 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 हाँ जी योगेश जी, जो आप जो वो इंडिया में पूछ रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट होती है, हम मंथली पे करते रहते हैं एनुअली, और वो एट द एंड ऑफ अगर कोई इंसिडेंट नहीं होता तो आपको एक मैच्योरिटी, गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। जी जी वो ऐसा कोई कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं है सर। यहाँ पे आपका जैसे कार का इंश्योरेंस है, अगर आपने कार इंश्योरेंस लिया, कुछ अगर कोई इंसिडेंट नहीं होता जी तो वो आपका आपको कुछ नहीं मिलता। सिमिलर यहाँ वही- पे ऐसा वही। कुछ नहीं है। तो ये Okay, ये तो मतलब जी 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 भाई मेरी जो इंश्योरेंस है सर, वो LI की जो लाइफ इंश्योरेंस है वो है अपनी सुपर एनुएशन के थ्रू। हाँ जी। तो वो
कंटिन्यूसली सुपरएन्युएशन के थ्रू ही चलनी चाहिए या अपनी कोई जनरल लेनी चाहिए, कौन सी बेनिफिशियल है? बहुत बढ़िया सवाल है योगेश जी आपका। और मैं हैप्पी हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपके सुपर में एक इंश्योरेंस है, क्योंकि जी ऑफ कोर्स। हाँ, मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके सुपर में एक डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस मिलता है। जब भी कोई एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय काम करता है, उसको सुपर अकाउंट बनता है उसका, उसमें एक डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस बाय लॉ सुपर के ट्रस्टी को देना होता है जी। और वो एक, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, ट्रस्टी ने अपनी मर्जी से दिया है आपको वो, तो जी। उसकी मर्जी रहती है, उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसको रिड्यूस भी कर सकता है, उसको इंक्रीज भी कर सकता है, उसकी जी। टर्म कंडीशन में चेंज भी कर सकता है। जी। तो उसमें आपने पूछ रहे हैं कि अगर मैं वो उसको कंटिन्यू रखूं या फिर बाहर से इंश्योरेंस लूं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इंफॉर्मेशन ज़रूर लें जी। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जो आपकी पॉलिसी सुपर के अंदर है, उसकी टर्म कंडीशन आपको नहीं पता है, वो मेडिकली अंडर रिटन नहीं है। मीन्स जिस टाइम पे आपको वो मिली, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन चेक नहीं हुई, आप स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, आपका उससे कोई लिंक नहीं है, तो जब क्लेम टाइम पे उसकी डेफिनेशंस मीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो रिकमेंडेड तो ये है कि आप डायरेक्ट कोई पॉलिसी लें, उसके सारे टर्म कंडीशन पढ़ के समझ के, बजाय के सुपर की पॉलिसी पे रिलाई करने के। जी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी किसी के पास काम नहीं करता, एज एन बिजनेस ही मैंने अपने तौर पे ही अपनी सुपर खोली हुई है। ओके जी, दैट्स और ग्रेट उसी में योगेश मेरे जी। को इंश्योरेंस मिला है। दैट्स ग्रेट योगेश जी, और गुड टू नो कि आप अपना बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं अपना, और अपना सुपर भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि एक ये भी अच्छी चीज़ है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं अपनी कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी की ही बात करेंगे, तो वो सुपर मेंटेन नहीं करते। इवन अगर आप टैक्सी ड्राइवर्स को भी लें, तो किसी के पास सुपर नहीं होगा, वो उनको पता भी नहीं है कि सुपर मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सुपर के क्या फ़ायदे हैं। जी। तो आपने अपना सुपर मेंटेन किया, ये अच्छी बात है। सुपर में एटलीस्ट कुछ ना होते हुए भी डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस तो हैं, लेकिन अगर आपको मच बेटर सिक्योरिटी, आपकी अपनी प्रोटेक्शन करनी है अपनी एसेट्स की, अपनी उसकी, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो आपको तैयार करना है, तो आपको आउटसाइड इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। जो कि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा योगेश जी, सुपर में सिर्फ लाइफ और टीपीडी होता है। लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल यही है मेरे पास। लाइफ इंश्योरेंस गिव यू बेनिफिट वंस यू डाई, gives your beneficiaries. TPD gives you benefit if you total permanent disable either due to injury or sickness. तो ये दो इंश्योरेंसेस आपके लाइफ के सारे हेल्थ इवेंट्स को कवर नहीं करते हैं। ओके जी। तो अगर आपको, हाँ जी जी। जी। सॉरी बोलिए। हाँ, तो अगर जैसे आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अपना तैयार किया है, तो आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्क पोर्टफोलियो भी तैयार करना चाहिए जी। जिसमें कि आपके सारे रिस्क कवर्ड हों। सारे रिस्क मीन्स अगर टीपीडी की आप डेफिनेशन मीट नहीं करते हैं लेकिन आप बीमार हो जाते हैं, अगर टीपीडी की डेफिनेशन मीट नहीं होती है, देन व्हाट, देयर इज नो बेनिफिट विल पेड। सो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक दिन आप किसी प्रोफेशनल से मिलें, आप किसी कंपनी में जाएं, किसी से भी कांटेक्ट करें, लेकिन आप इसके बारे में एक दिन निकाल के पूरी इन्फॉर्मेशन लें और इसके अपना एक रिस्क पोर्टफोलियो तैयार करें सर। ये मेरी रिकमेंडेशन है। दे दीजिए, मैंने बोला पहले ही कि मैंने अभी रेडियो ऑन ही किया है, अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपसे ही मिल लेते हैं फिर। हाँ जी सर, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा नंबर आप ले लीजिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और रेडियो हाँ जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज से भी जा सकते हैं। ਜੀ ਜੀ। ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੀजिए ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ 0401 604 755। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? सर मैं इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ, तो मैं सारी कंपनियों वाला डील करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से जितनी भी कंपनी है, BT, ANZ, AI, MP, तो एवरीथिंग।
यही मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली यही है। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो के बारे में। मेरी जैसे लाइफ बीटी के साथ है सुपरएन्युएशन, तो मेडिकल इंश्योरेंस जो मेरी फैमिली पूरी कवर्ड है मेडिकल के थ्रू, वो AXM के साथ है। तो हाउस एंड कंटेंट रेस्पेक्ट के थ्रू है, कुछ हो जाए वाकई के सारी चीजें कवर हो जाए, पैसे तो पे कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए वैसे इसके लिए आपको एक दिन पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए क्या कवर करता है और किस कंडीशन में कवर नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं, तभी आपको इन इंश्योरेंसेस का फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, एटलीस्ट मेंटली पीस दे सकते हैं आपको कि भाई यस। सॉरी सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक क्वेश्चन छोटा सा हो रहा है मेरे। हाँ जी सर। बाकियों ने भी कॉल करनी होगी। जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है उसमें एक्स्ट्राज होते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस अलग होती है, हॉस्पिटल कवर और एक्सीडेंटल कवर। हाँ जी। तो उसमें जो अगर हमने छोटी सी एक मेरे फ्रेंड की बात कहने की है कि मैंने ये क्यों ले रखी है, 200 प्लस मेरे फैमिली का जाता है, तो उसका बोलना था कि ये एज ए सिटीजन आपके पास मेडिकेयर है तो आप हॉस्पिटल में कवर तो हो ही, एज ए पब्लिक लाइबिलिटी तो है ही है पब्लिक हॉस्पिटल की, वो आपको कवर करेंगे। तो इसका फायदा क्या है एक्चुअली में? तो आप सिटीजन हैं और आपने प्राइवेट कवर अलग से लिया हुआ है और आप उसके अलग से 200 प्लस पे करते हैं। हाँ, फैमिली का पूरा कवर है मेरा, 2 बच्चे हैं मेरे, मेरी वाइफ का, मेरा दोनों चारों कवर है। चारों। तो देखिए सर, उसमें एक्स्ट्राज, अगर वो एक्स्ट्रा कवर आपने लिया है तो मुझे नहीं पता आपने वो कौन सा कवर लिया है, बट मैं 2-3 प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि वो आइदर वो एक्स्ट्रा कवर है आपके डेंटल और ऑप्टिकल कवर जो कवर करता है। नहीं, मैं एक्स्ट्रा की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। एक्स्ट्रा तो मेरे को पता है, चलो वो आप प्राइवेटली किसी में जाते हो तो वो आपका बेनिफिशियल है। मैं बात कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल कवर, हॉस्पिटल प्लस एक्सीडेंटल कवर, प्लस एक्सीडेंटल तो कवर। उसके कहने का मतलब था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल तो वो कवर करेगा ही, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मल पब्लिक हॉस्पिटल भी आपका इलाज करेगा। जी तो आप ये क्यों पे कर रहे हो अलग से? वो प्राइवेट के लिए है मेरे ख्याल से। देखिए मैं बगैर देखे तो कोई स्टेटमेंट ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਨਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲੋਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਡ ਔਨਸ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟਰਨ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ। और भी कई चीजें हो सकती है योगेश जी। बाकी भी बंदे काफी कॉल करने वाले होने हैं, बाकी मैं प्रवीण जी ने डायरेक्ट कॉल कर लूंगा, कोई गल नहीं, काफी कंफ्यूजन है। हाँ जी योगेश जी, आप सारी चीजें ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ ਉਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੈਂਟੋਲਬਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡਜ਼ ਐਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰਸ ਡੈਥ ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਿ ਮਨੀ ਬੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ बैक भी मिलता है? सो 2 क्वेश्चन है जी। हाँ जी जी देखिए गगन जी, जो आपका पहला सवाल है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ ਨੂੰ भी कवर करती है, तो नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइफ कवर नहीं देती है जी। और आपका दूसरा सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की तरह आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी टर्म आपको कोई बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता जी। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में तो नहीं मिलता। अगर आपका कोई भी हेल्थ इवेंट नहीं होता लाइफ तो आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी कुछ नहीं मिलता जी। बट देर आर अदर इंश्योरेंसेस लाइक ट्रॉमा इंश्योरेंसेस, ट्रॉमा, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट ओनली टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, काफ़ी सारे और इंश्योरेंसेस हैं जो कि आपको मैच्योरिटी से पहले बेनिफिट देते हैं जी। जैसे ट्रॉमा की अगर हम बात करें, ट्रॉमा इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि कुछ स्पेसिफिक इलनेस को कवर करता है। अगर आपको उनमें से कोई भी इलनेस डायग्नोस होती है तो जी। जो भी आपने बेनिफिट अमाउंट चूज किया है वो जी। आपको लमसम मिल जाता है, जी। ताकि आप अपने ट्रीटमेंट पे फोकस कर सकें, अपनी रिकवरी पे फोकस कर सकें और फाइनेंशियल अपनी लाइबिलिटीज़ को ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ तरह की हो जाती है सर? देखिए लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंट पार्ट्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो कि हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं जी। ट्रॉमा इंश्योरेंस जी जो कि हमें अभी अभी डिस्कस किया, जो कि इलनेस को कवर करता है, कुछ स्पेसिफिक इलनेस हैं उनको कवर करता है। एक है जी इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन आपको इनकम एक गारंटीड इनकम देता है, एक डिसाइडेड इनकम है। आप जो भी आप जी डिसाइडेड मैं गलत कहूँगा, लेकिन आपको एक थोरो चोजन पीरियड, जितना भी आपने पीरियड चूज किया तब तक आपको एक मंथली इनकम प्रोवाइड करता है। ओके ओके। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अप टू 70 ईयर्स तक आपको ये मंथली पेमेंट देगा, इनकम देगा। ਇਹ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਿੰਡੀ। ਮਿੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨ ਐਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। देखिए बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी ले सकते हैं, नो डाउट वो सारे कवर ले सकते हैं जी। लाइफ इंश्योरेंस, इनकम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इनकम प्रोटेक्शन के लिए आपकी इनकम होनी ज़रूरी है जी। तो स्टूडेंट प्रॉब्ली अगर वो जॉब कर रहे हैं और एक सर्टेन लेवल तक कमा रहे हैं तो उनको मिल सकता है, अदरवाइज उसमें थोड़ा डाउट है। अदरवाइज दूसरे इंश्योरेंसेज ले सकते हैं और उन पे एक रेजिडेंसी क्लॉज लगता है सर। रेजिडेंसी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रूल्स हैं, सारी कंपनियां नहीं एप्लीकेबल करती जी, बट मोस्ट ऑफ कंपनीज आपको कवर दे देती हैं जी। कुछ कंपनियां आपको बोल सकती हैं कि आपके रेजिडेंसी क्लॉज लगेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको जी किसी भी 2 साल के टाइम पीरियड में मोर देन 3 मंथ्स आप आउट ऑफ कंट्री नहीं होने चाहिए। अच्छा जी। कंटिन्यूस जी जी जी। तो ये एक रेजिडेंसी क्लॉज होता है जी। कुछ कंपनियां ये लगा देती हैं, अदरवाइज आप कवर ले सकते हैं ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਲਮਸਮ पेमेंट मिलती होगी। जी बिल्कुल। देखिए अगर बात करें एक कंप्लीट पोर्टफोलियो की, दो तरह के देखिए कस्टमर है, एक अवेयर कस्टमर, एक अनअवेयर कस्टमर जी। अवेयर कस्टमर इस बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कि जो मेरी एसेट्स हैं जी, जो मेरी फैमिली है उसको मैं प्रोटेक्ट करूं जी। वो अवेयर कस्टमर बोल सकते हैं, क्लाइंट्स बोल सकते हैं उनको आप जी। अवेयर है, वो इसमें इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और इसको इस पे स्पेंड करते हैं। इसका एक इनकम का एक स्मॉल पोर्शन इस रिस्क कवरेज पे वो लगाते हैं जी। और जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको वो पता होता है कि वो क्या कवर कर रहे हैं। जी जी। जब वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो जैसे उसमें वो आप जब बताया कि लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, जी बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और नॉट ओनली लाइफ, अगर आप टोटल परमानेंट डिसेबल भी अगर होते जी। हैं, आप जीवित हैं मगर आप इंजर्ड हैं, जी जी जी, तो भी इनकम सोर्स तो आपको चाहिए। जी जी। और अगर बात करें, देखिए हम थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करना चाहूँगा कि क्यों ये इंश्योरेंस कैसे आपको बेनिफिट करता है जी, और क्यों हमें ज़रूरत है, जी वाई वी नीड टू थिंक अबाउट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, जी, ट्रॉमा। जी जी जी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ की कड़वी सच्चाइयाँ हैं। जी जी। यहाँ पे हमने ज़िंदगी में कभी भी 10 घंटे किसी ने भी कोई एक काम कंटिन्यू नहीं किया होगा। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। तो यहाँ पे हमने वो 5 साल में 10 साल में इतना काम किया है जितना वहाँ पे 20 साल में नहीं करते क्या बात है। कंटिन्यू। जी जी जी। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में इतना जहाँ पे एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हुआ और जी। दिन रात आप किसी उसको कर रहे हैं, जी, तो जी। आप पॉसिबिलिटीज हैं कि रिस्क भी बढ़ गया है लाइफ जी 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 जी। और वो नॉट ओनली इंजरी का है, वो सिकनेस का भी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारा जी, खान पान चेंज हो गया जी, बिल्कुल। हमारी हेल्थ हैबिट्स चेंज हो गई हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। सोने के टाइमिंग चेंज हो गए हैं जी और एक्सरसाइज कम हो गई हैं जी। फोकस सिर्फ काम पे होता है। काम ही काम। जी जी। तो इन चीज़ों को देखते हुए वी आर मोर प्रोन टू इंजरी, मोर प्रोन टू सिकनेस। जी 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 जी। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को सिक्योर रख सकें उस बैड टाइम्स के लिए। जी। और बैड टाइम्स की बात करें तो अगर देखिए आप किसी क्लिनिक में जाएं, किसी जीपी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रोशर्स मिल जाएंगे ऊपर दीवार पे लगे हुए, जी जी बिल्कुल। जिन पे मोस्टली लिखा होता है कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा, मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1 in 3 ऑस्ट्रेलियंस हैव हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स। जी जी जी। 1 in 10 ऑस्ट्रेलियंस हैव ए हार्ट अटैक एवरी डे। जी जी जी। 1 in 10 हैव कैंसर बिफोर द एज ऑफ जी 45 समथिंग। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। जी जी। तो हम बात कर रहे थे इन चीज़ों की, तो इसलिए हमें इंश्योरेंस के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट्स भी ज़्यादा हैं। जी जी। और ऑस्ट्रेलियंस इस बारे में बहुत अवेयर हैं। जी जी। हम अगर बात करें अपनी कम्युनिटी की, अपनी कम्युनिटी इसमें अवेयर नहीं है जी कि वो उनको सिर्फ मोस्टली जैसे आप अभी बोल रहे थे तो एक ही दिमाग में बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस मीन्स सेलिंग समथिंग। एक मिनट जी, एक कॉल आ रही है, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 0447171 674 044 71 71 674।
ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 03 ਪਲੀਜ਼ ਕੋਡ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 93560344 93560 344। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਲਾਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी कमल जी। ठीक है, सत श्री अकाल प्रवीण जी, की हाल है जी सत ਤੁਹਾਡਾ? श्री अकाल जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਊਂਗਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗਾ ਕਵਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਓ। जी जी बिल्कुल। ਧੰਨਵਾਦ Thank you, कमल जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਾਰਨੇਟ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? नहीं सुरेंद्र जी, ऐसी नहीं है, मगर उससे ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੋਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 85ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? देखिए सुरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसी कंपनी नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है। मे बी आपके समझने में कुछ डिफरेंस रहा हो, मे बी उनको वो कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहे हों, बट सो फार मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ है। मैं नहीं कह सकता कि कोई कंपनी है। क्या आपके वो टर्म कंडीशन उन्हें बताए। बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सुरेंद्र जी इसमें कि ओवर द फोन आप एक इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਹੈ। हाँ जी ਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ देखिए अपना और भी देखिए मैं सुरेंद्र जी इसमें एक आपको बताना चाहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो सुपर में इंश्योरेंस है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। आपको आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपकी एज, ऑक्यूपेशंस और आपकी हेल्थ कंडीशंस ये चेंज होती रहती है। उसमें ऐसा कुछ भी आपका डिस्क्लोज उन्होंने नहीं मांगा डिस्क्लोजर, तो आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपको टर्म कंडीशंस नहीं पता है, आपको उसके एक्सक्लूजन्स नहीं पता है कि आपको किस कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम इट्स वेरी हार्ड टू मीट देयर डेफिनेशंस। तो अच्छा, इसलिए अगर आप एक अवेयर क्लाइंट्स हैं, अवेयर क्लाइंट बनना चाहते हैं कि आपको अपने इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो या तो उनको कॉल करें, सुपर को कॉल करें और अपनी पॉलिसी मंगवाएं उनसे, और उस पॉलिसी को पढ़ें, उसकी टर्म कंडीशन पढ़ें कि वाकई में वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आप उसमें वैसे ही पे किए जा रहे हो उसके लिए सुपर से। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸੁਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? जी बिल्कुल। जो इंश्योरेंस आप लेते हो एक इंश्योरेंस कंपनी से लेते हो,
वो मेडिकली अंडर रिटन होता है। वो आपसे आपकी मेडिकल सिचुएशन से, आपकी हेल्थ से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पहले ही क्लियर कर लेते हैं, और वो जिस टाइम अगर वो आपका रिस्क एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ क्लेम आपका सब कुछ कवर है। आप स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, आपको बीपी है नहीं है, थोड़ी बहुत आप कितना अल्कोहल ड्रिंक करते हैं कितना नहीं, तो सारी टर्म कंडीशन, आपने अभी कोई ट्रीटमेंट लिया है रिसेंटली, किसी चीज़ की दवाई आप ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो पहले ही असेस करते हैं। और पर जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेंदे हो अपने तो क्वेश्चन के जरिए लेंदे या कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवा क्वेश्चन के जरिए लेते हैं, लेकिन अगर आप जैसे उनको लगता है कि इनकी इसके मेडिकल की ज़रूरत है तो वो आपके जीपी से आपकी मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, आपकी परमिशन से, वो आपकी परमिशन से ही लेंगे वो भी, और आपके ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग एक्सरे सब कुछ करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो आप एक $1 मिलियन का जो भी कुछ भी लगा लीजिए, आप एक सपोज गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं जिसकी अमाउंट 25, 30, 50 हज़ार लाख जो भी है, जी जी, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको एक 20 पेज का टर्म कंडीशन का वो भेजती है जी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, और आप एक लाइफ कवर ले रहे हैं $1 मिलियन का जी, और ओवर द फोन आप उस पर डन कर देते हैं, ये वो आपको पता नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको पता नहीं है कि किस कंडीशंस में वो मेरे को क्लेम नहीं देंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें, जहां से भी लें, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपको अपने इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली को भी बताएं कि ये इंश्योरेंस है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ TAC ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ TAC ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। तो TAC ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ है। देखिए TAC एक रोड रिलेटेड इंसिडेंट्स को ही कवर करती है जी। रोड एक्सीडेंट से, क्योंकि जैसे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो वो सिर्फ रोड इंसिडेंट से ही वो वही कवर करती है। और उसमें भी टर्म कंडीशंस तो देखिए हर जगह होते हैं, और वहाँ पे भी आपको अगर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो किस कंडीशन में पे करते हैं, किस में नहीं करते हैं, उसका पूरा आप वो मंगवा सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट उनसे मंगवा सकते हैं। क्योंकि हर एक बंदा जो है वो अपनी जो गाड़ी की रेजो पे करता है तो वो टैग का इंश्योरेंस भी पे करता है जी उसके थ्रू, तो हर एक बंदा एलिजिबल है उसके लिए जो भी रोड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है जी। बट उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि उसकी अपनी कार है, वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल है, उसकी एज, उसका लाइसेंस, उसके पॉइंट्स, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए टैग से आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मंगवाना पड़ेगा उसके लिए। जी जी। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी आप TAC ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। हाँ जी, TAC को कॉल करके आप उनसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ? ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ TAC ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ।
जी बिल्कुल ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ यानी जी जानकारी है बिल्कुल ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जी बिल्कुल उसमें वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट मैंने जैसे पहले कहा कि उसमें काफ़ी टर्म कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं, वो टर्म कंडीशंस आपको ठीक है। पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अगर आप बाहर से कोई पॉलिसी खरीदते हैं, मैं जैसे बताएं कि इनकम प्रोटेक्शन ले लेते हैं, जैसे सपोज इनकम प्रोटेक्शन आपको आपके प्रोफेशन की आप जो इनकम गेन कर रहे हैं उसका 75% तक कवर करता है इंश्योरेंस, और आपको 70 है। ईयर्स एज तक आपको मंथली इनकम देता है। और आपको ठीक। वो चाहे आप इंजर्ड हों, चाहे आप सिक हों, आइदर ड्यू टू सिकनेस और इंजरी, और आइदर एट होम, एट वर्क, एट रोड और एट प्लेग्राउंड, एनीवेयर, ਐਨੀਵੇਅਰ वो हर कंडीशन में आपको कवर करता है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਰਕ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਵਰਕ ਕਵਰ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਤੇ, हाँ, वर्क कवर आपको सिर्फ वर्क पे कवर करता है। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਇਹ हर जगह जी। हाँ, जो आउटराइट पॉलिसी आप खरीदते हैं वो आपको सारी कंडीशंस में और सारे सरकमस्टांसिस में कवर करती हैं। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ नहीं जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਾਕ ਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ, 04471717674, 044 71 71 674, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 0393560344, 93560344। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ SMS ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ ਭਰਮ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਠੀਕ TAC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ TAC ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? देखिए, जो इंश्योरेंस अभी डिस्कस कर रहे थे मनदीप जी के साथ, जो टैग का है, जी। जैसा कि हमने बताया, वो सिर्फ आपको एक्सीडेंट के केस में कवर करता है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी रोड एक्सीडेंट और यू आर इंजर्ड बाय एनी मिस्टेक्स ऑफ रोड अथॉरिटी, जी जी, तो कुछ सर्कमस्टांसिस में। बट जो बारह इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे और दूसरे इंश्योरेंसेज हैं, और वो आपके लाइफ का सिर्फ एक इवेंट है, एक्सीडेंट एक ही इवेंट है आपका, सिर्फ एक्सीडेंट, और बाकी दूसरे इवेंट्स उसमें कुछ भी कवर नहीं है। जी जी जी। तो अगर हम वैसे रिस्क पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखें तो हमें सारे रिस्क को कवर करना जरूरी है। जी। अब जैसे गाड़ी का अगर इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस में अगर गाड़ी वो कहें कि भाई सिर्फ आपको उसमें भी चॉइसेस हैं जी, आपको थर्ड पार्टी लेना है, आपको फुल कम्प्रिहेंसिव लेना है। जी जी। थर्ड पार्टी, अब फुल कम्प्रिहेंसिव वो लोग लेते हैं जिनको अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन है, दूसरे की प्रोटेक्शन करनी है, और सारे एसेट्स की प्रोटेक्शन करनी है। जी जी। थर्ड पार्टी में आप सिर्फ दूसरे की एसेट्स की प्रोटेक्शन लेते हो, अपने की नहीं है। अपने की नहीं लेते जी। तो सेम आपको अगर एक पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो अपनी हेल्थ के लिए चूज करना है जी, कि मुझे अपने लिए सिकनेस के केस में चाहिए, जी, मैं टैक्सी चलाऊंगा, मैं अगर मेरे को बैक इंजरी, बैक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें टैक डू नथिंग फॉर दैट। जी जी। तो उसमें आपका वर्क कवर नथिंग, वर्क कवर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को कोई वर्क कवर नहीं है जी। अच्छा जी। अनटिल अनलेस कि उसकी कंपनी ने उसको प्रोवाइड करवाया। जी जी जी। बट मोस्ट केसेस में नहीं होता। जी। तो इसलिए जो सारे हेल्थ इवेंट्स हैं, सिकनेस का हेल्थ इवेंट, अगर जैसे हम बात करें ट्रॉमा इंश्योरेंस की, जैसे अभी कमल जी ने पूछा था कि ट्रॉमा को थोड़ा सा एलेबोरेट करें। जी जी जी। तो ट्रॉमा इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपकी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ सिकनेस है उनको कवर करता है। उनकी अगर वो डायग्नोस हो जाती है आपकी बॉडी में, जी, तो वो एक लमसम बेनिफिट देता है। ओके। और वो काफ़ी क्रिटिकल इलनेस होती हैं। जी जी। जैसे अगर बात करें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, जी, परप्लेजिया, जी। क्रोनिक लीवर, लंग, किडनी डिजीज, किडनी डिसऑर्डर। ये कोई इन्हों की लिमिट होती है जी कि इन्नियां ने या इतनी होती हैं या इतनी नहीं होती, इनकी कोई लिमिट होती है कि ये पर्टिकुलर मतलब 40 to 50 सिकनेसेस हैं? नहीं,
नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल ये कुछ डिफाइंड सिकनेस है। जी 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 डिफरेंट कंपनी में कुछ कम कुछ ज़्यादा है। जैसे अगर आप ट्रोमा लेते हैं, खाली ट्रोमा, तो वो आपको कुछ 40 प्लस कवर करता है। डिजीज हैं जो, जी ट्रोमा प्लस है, ये ट्रोमा प्लस डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट नाम हो सकते हैं इनके। जी जी हम एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। अगर जी। उसका प्लस वर्जन ले लेते हैं आप उस इंश्योरेंस का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके, तो वो आपकी और उसका दायरा बढ़ जाता है कवरेज जी का, जी और बेनिफिट का दायरा ही बढ़ जाता है। जी जैसे कुछ कंपनियां हैं कि जैसे हार्ट अटैक का एक मामूली स्ट्रोक भी अगर आता है आपको, जो कि 10% स्ट्रोक है, जी उस केसेस में आपको 100% आपका बेनिफिट अमाउंट दे देती हैं। जी 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 कुछ कंपनियां ऐसे हैं, अगर आपको हार्ट अटैक का मामूली स्ट्रोक हुआ है तो आपको एक अपने बेनिफिट अमाउंट का 20% ही देते हैं। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ बहुत ज़रूरी हो जाती जी हैं जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो अभी जिसको टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरा पोर्टफोलियो, रिस्क पोर्टफोलियो कवर होना चाहिए। जी। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। हाँ नमस्कार जी, मैं मेलबर्न से बोल रही हूँ। जी जी बोलें जी। आपका नाम? सर मेरा नाम अंजना है, मैं मेलबर्न में रह रही हूँ पिछले कई सालों से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम सुन के प्रवीण जी का। जी जी थैंक यू मेरा अंजना जी। एक क्वेश्चन है प्रवीण जी से। हाँ जी 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 अंजना जी। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपने बोला अभी इनकम टैक्स प्रोटेक्शन एंड ट्रोमा, हाँ जी ये जो ये लाइफ इंश्योरेंस के हैं, क्या कोई आदमी इन सबको इकट्ठा एक इंश्योरेंस के अंडर ले सकता है जिसमें आपको ट्रोमा भी कवर करे और वो आपकी इनकम भी कवर करे? जी जी बिल्कुल अंजना जी, आपका सवाल बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत सही है। अभी तक हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि सारे इंश्योरेंस का एक पैकेज आप ले सकते हैं और आप इसको सुपर से लिंक भी कर सकते हैं। जी जी तो जैसे तो अगर हाँ जी हाँ जी जी अंजना जी। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको उनको आउट ऑफ पॉकेट इतना पे नहीं कर सकते, प्रीमियम नहीं पे कर सकते हैं, तो आप सुपर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सुपर से अपने प्रीमियम्स को फंडिंग कर सकते हैं और सारे इंश्योरेंस मेंटेन रख सकते हैं। जी अंजना जी। ओके सर, ये काफी अच्छी बात बताई सर आपने कि मैं सुपर में से अपनी इंश्योरेंस का कुछ पार्ट उसमें से डिडक्ट हो सकता है, रादर देन कि मैं अपनी इनकम में से एक इंश्योरेंस का पार्ट दूं। जी बिल्कुल, आप सुपर से पे कर सकते हैं। अपने सुपर को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रीमियम पे करने के लिए। जी जी अंजना जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये प्रोग्राम सुन के सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू अंजना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। इसी तरह सुनते रहिए जी और कॉल भी करते रहिए। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। थैंक यू। नो वाइज जी, थैंक यू। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੋਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਟਰੋਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। टोटल डिसेबिलिटी भी ट्रोमा की तरह आपको एक लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है इन केस अगर आप टोटल परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, आइदर ड्यू टू सिकनेस और आइदर ड्यू टू इंजरी, डजंट मैटर। तो और इसका भी पर्पज़ वही है सर, ट्रोमा की तरह। जैसे आप अगर आप इस कंडीशन में होते हैं तो आप अपने लमसम बेनिफिट को यूज़ कर सकते हैं डेब्ट पे करने के लिए, अपने लिविंग एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए जी, और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए। जी 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 तो ये भी सर वैसे ही है। और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस हैं, इसमें भी ऑप्शंस हैं। जी आप अपने ऑन ऑक्यूपेशन के लिए लेना चाहते हैं या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए लेना चाहते हैं। जी जी जैसे मैं एक एग्जांपल के उसमें बताना चाहूँगा आपको कि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ऑन ऑक्यूपेशन और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी एनी ऑक्यूपेशन, ये दो चॉइसेस होती हैं टीपीडी इंश्योरेंस की, और दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं। जी ऑन डेफिनेशन से मीनिंग है जैसे कि अगर आपको आप एक डॉक्टर हैं सपोज,
जी। और आपके पास टीपीडी, आपने ऑन ऑक्यूपेशन लिया हुआ है जी, टोटल डिसेबिलिटी। और आपको कोई भी मान लिया आपके एक्सीडेंट हो, आपका एक साइट आई साइट चली गई आपकी जी। मान लिया, या फिर आपको सुनने की आपकी अक्षमता नहीं रही, या जी, फिर जी। आपका कोई लिम्ब चला गया, या फिर आपकी बैक इंजरी हो गई, जी मीन्स अगर आपकी कोई भी होती है और आप डॉक्टरी काम नहीं कर सकते दोबारा, जी 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 तो दैट मीन्स आप ये है कि आप जैसे बैठ के और कुछ कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, या फिर कुछ लिस्ट आप एडवाइस देने का काम कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर डॉक्टरी का काम नहीं कर सकते। जी 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 तो वो ऑन ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन होगी जी। जी, वो ऑन ऑक्यूपेशन जो है वो उसको कवर करेगा। उसको नहीं, ऑन ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन मीट होगी मीन। जी जी जी, ओके ओके। आपको चाहे इंजरी थोड़ी सी हुई है, लेकिन अगर आप डॉक्टरी का दोबारा नहीं कर सकते हैं जी ओके, तो आपको वो पेमेंट मिल जाएगा, आपका पेमेंट आपका क्लियर, आपका क्लेम क्लेम क्लियर क्लियर हो जी, जाएगा, जी। आपकी वो डेफिनेशन मीट होगी। मतलब एनी ऑक्यूपेशन में ये होता है कि वो तब होगी जब आप कोई भी काम करने लायक ना रहें। ओके ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। जी। कोई मान लिया टैक्सी ड्राइवर है, अगर वो ऑन ऑक्यूपेशन ले लेते हैं जी और उनको कोई बैक इंजरी हो जाती है, तो दैट मीन्स दे कैन नॉट ड्राइव एनी मोर, जी तो वो स्ट्रेट वे उसकी डेफिनेशन को मीट कर देते हैं। जी, क्लेम उनका बन हाँ, जाएगा। जी अगर वो एनी ऑक्यूपेशन उन्होंने लिया हुआ है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उनको ट्राई करेगी कि उनको कोई जॉब दिलवा दे, दूसरी बैठने की जॉब, ओके ओके ओके, ऑफिस की जॉब कोई दिलवा और दे, कोई खड़े होने वाली खड़े या होने कुछ वाली कहीं और हाँ, एडजस्ट करना चाहेंगे हाँ। अपना क्लेम बचाने के लिए। हाँ, अपना क्लेम बचाने के लिए। जी जी तो ये दो इसकी टाइप्स हैं, ऑन ऑक्यूपेशन और एनी ऑक्यूपेशन। ਜੀ ਜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੋਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 0401604755। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇजेस ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈल्थ इंश्योरेंस, इज इट गुड टू हैव इट? देखिए, ये एक पर्सनल सर्कमस्टांसिस का सवाल है जी जी कि आपको अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जी, तो आप प्राइवेट लें जी। अगर आप रेजिडेंट हैं और सिटीजन हैं, आपके पास मेडिकेयर है, जी, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको प्रायोरिटी चाहिए आपके उसमें, तो आप प्राइवेट हेल्थ कवर लें। अदरवाइज प्राइवेट हेल्थ कवर, नॉर्मल हेल्थ कवर भी आपके हेल्थ कंडीशंस को कवर करता है। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰੋਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। देखिए दलबीर जी, ट्रॉमा और इनकम प्रोटेक्शन जैसे आपने सिर्फ ये दो ही पूछे हैं, तो ट्रॉमा कोई भी ले सकता है जी। आप एक होम मेकर के लिए भी ले सकते हैं, आप जी। एक हाउसवाइफ के लिए भी ले सकते हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक चाइल्ड के लिए, एक अडल्ट के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं। उससे इनकम का कोई लिंक नहीं है, उससे आपकी ऑक्यूपेशन का भी कोई लिंक नहीं है। नहीं, ऑक्यूपेशन का लिंक है, सॉरी दिलबीर जी, मैं
गलत बोल गया। तो ऑक्यूपेशन ही चाहिए आपका, जैसे अगर होम मेकर हैं तो होम मेकर विच इज़ योर ऑक्यूपेशन, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं हाउस वाइफ, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਬੀਐਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ पॉलिसी ले सकते हैं? हाँ, ट्रोमा कोई भी ले सकता है। ट्रॉमा कोई भी ले सकता इनकम प्रोटेक्शन के लिए आपके पास, जैसा कि नाम से ही है इनकम प्रोटेक्शन, आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करता है। जी जी। तो उसके लिए आपकी इनकम होनी चाहिए। नहीं मतलब इनकम तो सर उनकी आ ही रही है ना, टैक्सी से इनकम तो आ ही रही है। हाँ, तो जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है जो आप शो करते हैं, आपकी इनकम का 75% तक वो कवर करता है इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। जी, मतलब मेरे यही सवाल आਉਂਦਾ कि ये पॉलिसी ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ इनकम है। जी जी, उसका 75% तक ही कवर करता है इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। दैट मीन्स इफ और ये मैक्सिमम 30,000 तक है, मैक्सिमम 30,000 तक, और कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशंस के लिए 60,000 पर मंथ भी कवर करता है, जी, कर जी, सकता है। जी। और अगर जहाँ पे बात करें हम जैसे टैक्सी ड्राइवर्स की, अगर वो अपनी इनकम 30,000 शो करते हैं तो उनकी उसका 75% आप लगा लीजिए, वो उतना कवरेज आपको जी मिलेगा। मतलब यही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। Income show ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਵੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲकुल ਭਾਵੇਂ सैल्फ एम्प्लॉयड है पर इनकम तो है ना जी जी उन्होंने। बिल्कुल जी एक और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जी। इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस में आपने सपोज अभी आपने आपकी इनकम 30,000 आपने ले लिया इंश्योरेंस, आप डाउन द ट्रैक 3 years 5 years 10 years कभी आप जब क्लेम करते हैं और उस टाइम पे आप किसी और ऑक्यूपेशन में हैं जी और आप मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस टाइम पे आपकी इनकम को असेस करने के लिए जो इनकम देखी जाएगी वो आपकी लास्ट 3 years की होगी। पिछले 3 साल की जो बेस्ट इनकम होगी जी, उसका 75% आपको मिलेगा। ਬੈਸਟ ਇਨ ਸੈਂਸ ਜੋ सबसे ਜ਼ਿਆਦਾ सबसे ज्यादा जो होगी। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ। हाँ, नहीं करंट वाली नहीं देखेंगे, बिल्कुल लास्ट 3 years की। जी और कई कंपनियां तो ऐसे भी हैं लास्ट 3 years के बेस्ट 12 month देखते हैं, जी, कोई जी। भी बेस्ट 12 month उसका 75। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜੱਟ ਜੀ। सत श्रीकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਬਾਰ ਤਸਮਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਰਜੀਵ ਜੀ, ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਸਮਾਨੀ ਹਬਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ जी। ਤਸਮਾਨੀਆ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ। जी ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखिए राजीव जी, आपने जो बताया कि आपके सुपर में इंश्योरेंस हैं लाइफ और टीपीडी दोनों, लाइफ और इनकम प्रोटेक्शन, ही है इनकम प्रोटेक्शन ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और टीपीडी भी होगा। लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, टीपीडी भी उसमें होगा, आपने मिस कर दिया हुआ, देखा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है जी। जो बेनिफिट हैं और प्रीमियम्स हैं वो हर साल बढ़ते हैं। अगर उसमें भी वो भी आपके पास ऑप्शंस होता है कि अगर आप अपने बेनिफिट को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं हर साल, जी तो आप हाँ जी। उसमें एक ऑप्शन है, आप इंडेक्सेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, आपका बेनिफिट नहीं बढ़ेगा, सॉरी आपका बेनिफिट नहीं बढ़ेगा। और आपका प्रीमियम की भी चॉइस है, आपको प्रीमियम को भी स्टॉप कर सकते हैं। देयर इज 2 ऑप्शन। नहीं, बेनिफिट तो मेरा उतना ही है। बेनिफिट तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया था जितना तो मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है उसका। हाँ, प्रीमियम बढ़ रहा है। हाँ, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये सुपर से इंश्योरेंस है, इसका ट्रस्टी ने आपको बाय डिफॉल्ट दिया है। आपका हेल्थ चेकअप हुआ है? आप बता रहे हैं आपका हेल्थ चेकअप हुआ? जी इन्होंने कहा जी हाँ जी, जब उन्होंने मेरा आया था, मेरा बकायदा पूरा मेरा डॉक्टर से, मेरा जीपी से उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह सारी एक उन्होंने मेरे को बकायदा फॉर्म भेजा था। हाँ जी। तो फॉर्म मैं अपने जीपी के पास लेके गया और जीपी ने सारी रिपोर्ट बना के उनको फिर सेंड किया वो फॉर्म। उसके जी। बाद उन्होंने मेरे को पॉलिसी दी। उसके बाद आपको इनकम प्रोटेक्शन दिया उन्होंने? हाँ, इनकम प्रोटेक्शन भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। ओके। राजीव जी, आपकी एज कितनी है अप्रोक्स? मेरी इस टाइम मैं 45 है सर। 45 है, हाँ जी।
जी बिल्कुल सही राजीव जी, क्योंकि आप एज के उस दौर में हैं जहाँ पे कोई भी कंपनी अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वो आपको कवर करने से पहले आपके सारे हेल्थ स्टेटस चेक करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस आपकी उम्र के एज के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। आपकी छोटी उम्र में आपको बहुत ही लेस प्रीमियम में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा सेम, और आपको हेल्थ चेकअप भी नहीं कम करवाने पड़ेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि पहले मेरी प्राइवेट थी उसके साथ डबल ए पीपी के साथ हाँ जी। डबल ए थी, तो मैंने उनके साथ 5 साल मैंने की, तो लेकिन फिर मेरे को तो मालूम नहीं था कि मेरी सुपर पड़ी हुई, क्योंकि पहले मैं जॉब करता था मैं। हाँ जी हाँ जी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया कि हम बातें कर रहे हैं ऐसे वैसे ही, उसने कहा कि मेरी तो सुपर के साथ है, क्योंकि सुपर में ही जो हमको इंटरेस्ट मिलता है हाँ जी उसी में से वो अपना प्रीमियम डिडक्ट कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक है ना, तो हमको जो हमने एक्स्ट्रा डालना वो हम डालते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है। उसने मेरे को रिकमेंड किया था कि तुम सुपर से करवा लो, तो सुपर वालों ने, जब मेरा तकरीबन 4 साल हो गए मेरे का, हाँ जी जब मेरा फर्स्ट ईयर का प्रीमियम था उस टाइम था मेरे ख्याल 400 के करीब, जी। लेकिन अब लास्ट ईयर जो उन्होंने मेरा डिडक्ट किया वो किया मेरा तकरीबन 1400 किया उन्होंने ये का। 1400 जी। जी बिल्कुल सही है राजीव जी। जैसे जो एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और ये मैं श्योरली नहीं कह सकता कि वो कितने अमाउंट का आपका बेनिफिट है, आपने कितना लाइफ इंश्योरेंस लिया है, कितनी अमाउंट का, और क्या उसकी टर्म कंडीशन रही जिस टाइम पे आपने उसको साइन अप ਮੈਨੂੰ किया। ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर मैं इसी में कंटिन्यू रखूं ठीक है मेरे लिए, कि मैं चेंज कर लूं आपके हिसाब से, क्या आपके recommend आप देखिए कोट ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। आप आउटसाइड कोट ले सकते हैं, दूसरी कंपनीज को अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके, जी। और आपको वो प्रोजेक्शन भी दे देंगे। ब्रोकर से आपको एक बेनिफिट होता है, आपको वो सारी कंपनियों के व्यू दिखा सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको कितने में ऑफर कर रही है, और कौन सी कंपनी, उसके प्रोजेक्शन भी दिखा देते हैं कि आपको नेक्स्ट 15 ईयर्स तक आपका कितना प्रीमियम जाएगा और कितना बढ़ेगा एवरी ईयर। और एक लेवल प्रीमियम होता है और एक स्टेप्ड होता है। लेवल में आपका थॉरोली सेम रहता है, 20 ईयर्स के लिए लेवल ले लिया आपने, उसमें लेवल रहेगा, स्टेप वो बढ़ेगा। तो वो सारी सर्कमस्टांसेस आप देख सकते हो प्रोजेक्शन। ठीक है सर, हाँ जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू राजीव जी। तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्राम से नॉलेज मिली। कुछ नॉलेज तो थी पर कुछ बातें फिर भी क्लियर हो गई आज। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਕਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ 8 ਲਗਭਗ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼, ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? गुरजोत जी, देखिए बातें तो बहुत बच गई जो अभी हमें बात करनी थी, डिस्कस करनी थी, बट एक और इन्फॉर्मेशन मैं श्रोता नाल शेयर करना चाहूँगा कि
जितने भी हमने डिस्कस किया उसमें एक और बात रहेगी, आउटसाइड सुपर और इनसाइड सुपर। जी ये भी एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहता था मगर आज टाइम नहीं मिला हमें। जी कि जब भी आप इंश्योरेंस कराने जाएं तो उसके पीछे आप एडवाइज़र से या कंपनी से ये ज़रूर सवाल पूछें कि वाई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड सुपर इनसाइड सुपर। जी अगर आप आउटसाइड पे कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट है, इनसाइड पे कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिट है। जी सुपर एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके ऊपर हम बहुत सारे लेजिस्लेशन हैं, गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस हैं, जी तो इसका रिलेशन डायरेक्ट आपके बेनिफिट से है। जी जब आप एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको बेनिफिट मिलता है जी तो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम जो है आउटसाइड सुपर आ रहा है या इनसाइड सुपर आ रहा है। जी जी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब भी अगर आप किसी से मिलें एडवाइजर जी, से, एडवाइजर ਨਾਲ हाँ, तो ये ਜ਼ਰੂਰ इन चीज़ों को क्लियर करें। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣੀ ਚੜੇ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।